All right. Today we are going to see John chapter 1. आज हम यूहन्ना का पहला पुस्तक उसे देखेंगे। Last time we were continuing through the book of John, the Bible study. We have seen verse 1 to 5. पिछले समय में हमने देखा यूहन्ना का पहला अध्याय उसका पहले वचन से छठवें वचन तक। Last time we saw about the introduction. लास्ट टाइम पिछले समय में हमने जो है वो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा And we have seen verse 1 to 4, the topic Jesus Christ is greater than man. और हमने लास्ट समय में देखा वचन 1 से लेकर 6 तक कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से कहीं बढ़कर। So today we are going to continue from verse 6 to 13. आज हम छठवें वचन से आगे के उसे कंटिन्यू करेंगे। We are going to see why to receive Jesus. आज हम देखेंगे कि यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए। Why to receive Jesus. यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए। Verse 1 to 6 I will read. And there was a man sent from God, whose name was John. And the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear the witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका छठवें वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। All right. So last time we have seen verse 1 to 5. Now we will move ahead to 6 to 13. पिछले समय में हमने देखा वचन 1 से लेकर 5 तक, और आज हम वचन 6 के आगे को देखेंगे। The title we have taken from these verses. ये वचनों से हमने जो शीर्षक लिया है In verse 11. वचन 11 में है। He came unto his own, but his own received him not. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Verse 12 says, but as many as received him, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। So we'll pray. Thank you, Heavenly Father, for helping us once again to continue through the book of John. I pray that you guide us with the Holy Spirit. Breathe on us, O Lord, to help in this study. We'll edify each other, O Lord. In Jesus' name I pray. आमीन। Okay. So why to receive Jesus? यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए? Before talking about receiving Jesus, यीशु को स्वीकार करने के बात करने के पहले we'll see that people only nowadays they hear about Jesus. हम देखेंगे कि आज के दिनों में जो है लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं। They believe who he was. वो विश्वास करते कि वो कौन था, Right? But problem is they don't receive him as their personal savior. परंतु समस्या ये है कि वो उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। No matter how much you know Jesus. ये बात कोई कुछ भी क्यों ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितना भी क्यों ना जाने, Right? No. But if you don't receive him, परंतु अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते you're going to hell, the Bible says. तो हम नरक में जाएंगे, वचन कहता है। So why to receive Jesus? तो यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए? The simple answer इसका सीधा उत्तर है in verse 12 itself. वचन 12 में है। But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। The Bible says if you want to come, वचन कहता है कि अगर आप आओगे, if you want to come in the family of God, वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के परिवार में आओगे,
you have to receive Jesus. तो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। Jesus said, I am the way. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, I am the way, the truth, the life. No मैं man मार्ग cometh unto the Father but by me. मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, और परमेश्वर के पास कोई भी व्यक्ति मेरे बिना नहीं जा सकता। So this book of John, तो ये जो यूहन्ना की पुस्तक है, the John talks about Jesus Christ. यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है। Talks that Jesus Christ is God. वो यहाँ पर सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Jesus Christ is not an ordinary person. प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक सादा मनुष्य नहीं था। Bible says God was manifested in flesh. वह वचन कहता है कि जो परमेश्वर के रूप में जो है वो Verse 14. वचन 14 में जैसे लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Before the creation of this world, ये संसार के रचना के पहले Jesus Christ was not called son. जो प्रभु यीशु मसीह है उसे पुत्र नहीं कहा गया था। Jesus Christ was called the Word. प्रभु यीशु मसीह को जो है वो शब्द कहा गया था। When he came in the form of flesh, और जब वो शारीरिक रूप में आया, the title given the Son of God. और उसे जो है पुत्र का शीर्षक दिया गया। So if you want to become the sons of God, अगर परमेश्वर की संतान होना है, the Bible says you have to receive Jesus. तो वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना If you चाहिए। don't receive him, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते you'll go to hell. तो हम नरक में जाएंगे, That is sure. ये निश्चित है। So people believe Jesus. तो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, They hear about Jesus, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, but not receive him as their personal savior. परंतु उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में धारण नहीं करते। People fail to receive him. लोग मुकर जाते हैं कि उसे स्वीकार करने में। Nowadays in the church, आज के दिनों में जो in the church services, चर्च सर्विसेज में whenever there is gospel preached, जहाँ कहीं भी सुसमाचार को प्रचार किया at जाता the है, end there should be an invitation. और वहाँ की उसके जो लास्ट में जो है वहाँ पर एक निमंत्रण होना चाहिए। Invitation to receive Jesus Christ. निमंत्रण होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का And निमंत्रण। we see there is no invitation, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी निमंत्रण नहीं होता है। right? So people fail to receive him. तो लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर पाते। They just go home believing that who Jesus is. वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कौन है ये जानकर अपने घरों को लौट जाते हैं, And they go home and they trust something different to go to heaven. और वो अपने घर चले जाते हैं और वो किसी दूसरी बात पर विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग जाने के लिए, Right? Not Jesus. परंतु प्रभु यीशु मसीह पर नहीं। They think that I read my Bible, I come to church, and I do good works to people, I tithe, so I will go to heaven. तो वो सोचते हैं कि मैं भवन में आऊंगा और मैं वचन पढ़ूंगा और मैं अपने भले कामों को करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। Then they don't know that Jesus died for their sins, and He is the only way to go to heaven. और उन्हें पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र स्वर्ग जाने का रास्ता है। So to become sons of God, तो परमेश्वर के संतान होने के लिए you have to receive Him. तो हमें उसे स्वीकार करना है। So today we are going to see verse 1 to 13. तो आज हम देखेंगे वचन 6 से लेकर The 13 title is Why to Receive Jesus. प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करना चाहिए। So we are going to discuss some 5 reasons. तो हम आज 5 कारणों को डिस्कस करेंगे। That reasons are why to receive Jesus. वो जो कारण है वो है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करना चाहिए। In verse 6, वचन 6 में हम the first देखेंगे, reason I will read here, I will display it. Because God sent a witness. क्योंकि परमेश्वर ने एक गवाह भेजा। Why to receive Jesus? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार क्यों करना चाहिए। Because He sent a witness. क्योंकि परमेश्वर ने एक गवाह भेजा। We'll read verse 6 and 7. And there was a man sent from God whose name was John, and the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. वचन 6 और 7। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। See, the Bible says that God sent a man. वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को भेजा। He was John. वो जो है वो यूहन्ना था। Means John was from God. He came. God sent him. जो यूहन्ना जो था वो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर ने उसे भेजा था। Why he came? वो क्यों आया। Verse 7, for a witness. वचन 7 में लिखा है कि वो गवाही देने आया। Witness of what? गवाही किस बात की गवाही। The light. ज्योति की गवाही। Right, light. If you see in the Bible, the L is capital. अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो यल जो है वो कैपिटल में It है। is not small L. वो जो है वो छोटा वाला यल नहीं This है। is not light of a sun.
वो जो है वो जो सूरज की किरणों का संदर्भ नहीं है, It is God's light. वो जो है वो परमेश्वर की ज्योति है। And the reason in verse 7 said that all men through him might believe. वचन 7 में लिखा है कि वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। So John was a witness. तो जो यूहन्ना था वो गवाह था। John told the coming of Jesus. यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में बताया He था prophesied. और उसने भविष्यवाणी की। Right? If you see John in this chapter, verse 29, what did the John shouted? 29. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। See, John is witnessing of Jesus Christ. What he's saying, the next day John sees Jesus coming unto him and said, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. See, the John is a witness of Jesus Christ. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है वो गवाह है John is declaring to the people और जो यूहन्ना जो है वो लोगों को डिक्लेयर कर रहा है that Jesus is the only man ever came down to earth to take away the sins of all world. यूहन्ना यहाँ पर लोगों को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर आया, जो हमारे इस जगत में आया कि हमारा पाप वो उठा ले जाए। Right? He is the only man who came down वो है एकमात्र मनुष्य है जो नीचे आया to take away the sins of the world. कि वो हमारे पापों को उठा ले जाए। He is told as a Lamb of God. वो जो है वो एक परमेश्वर का मेमना उसे कहा गया। So from verse 6 and 7 we understand वचन 6 और 7 से हमने ये समझा that God sends a man कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को भेजा to bear a witness. कि वो गवाही दे, He is the witness of the light of God. और वो गवाही था कि परमेश्वर की ज्योति की So that गवाही, by seeing the light, और वो ज्योति को देखकर all might believe in him, कि सब लोग उस पर विश्वास करें, believe in Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। So this is what doctrinally we have seen. ये जो है ये वचनों पर हमने अब देखा कि ये So क्या we'll कहता है। apply this spiritually. तो हम इसे आत्मिक रूप से इसे Verse 6, if you look, verse 6, वचन 6 में देखते हैं, that there was a man sent from God. वहां पर एक मनुष्य है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया If है। you have already received Jesus Christ, अगर हमने पहले ही प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है you are sent from God to witness all the world. तो परमेश्वर ने हमें जो है वो एक गवाही के तौर पर इस संसार में रखा है। Right? God uses men. वह परमेश्वर जो है वो मनुष्य को उपयोग करना जानता है। You know that there is one cycle. क्या आपको पता है कि एक साइकिल है? We'll not talk about that, but we'll talk in shortly. The cycle is that God uses one man कि परमेश्वर जो है वो एक मनुष्य को उपयोग करता है and God uses that man to start a movement. कि परमेश्वर जो है उस मनुष्य का उपयोग एक मूवमेंट को शुरुआत करने के लिए करता है, And then from that movement there is an organization. और Church is built. और उसके बाद जो है वहां पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, And the man passes away. और वो जो मनुष्य है वो चला जाता है, Means he died. उसका मृत्यु हो जाता है, Then only the organization remains. और उसके बाद जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही बचता है। And what the people do? और लोग क्या करते हैं? They try to protect the organization. और वो लोग कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना है उसको हम प्रोटेक्ट करें। They don't want to find a man sent from God. वो जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य भेजा गया है उसे ढूंढना नहीं चाहते। That's why if you see the old churches, इसलिए हम देखते हैं कि जो पुराने के जो भवन थे the founders were used by God. वहां पर जो उसके जो संस्थापक थे वो परमेश्वर के द्वारा थे, Used by God, right? परमेश्वर के द्वारा उनका उपयोग किया गया था। But when the founder passed away, परंतु जब वो संस्थापक का मृत्यु हो गया, वो चले only गए, organization remained. वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो चर्च था, वही बचा था। And now people are only protecting the organization. They are not finding or in a search that God will send perhaps a man who is sent from God. और वो जो लोग हैं वो सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन और वो भवन को ही वो सिर्फ प्रोटेक्ट करना जानते हैं, परंतु वो ये नहीं ढूंढ रहे कि परमेश्वर के द्वारा भेजा गया जो एक मनुष्य, उसे वो नहीं ढूंढ रहे हैं। Right? So in this day and age in which we live today, आज के दिनों में जब हम यहाँ पर जी रहे हैं, we need witnesses हमें जो है वो गवाही की जरूरत है to bear the witness of this light. कि हम इस ज्योति की गवाही को दे सके। If we apply to us this passage, अगर इस वचन को अगर हम हमारे इसमें अगर अप्लाई करते हैं, you as a Christian हम एक मसीह के तौर पर are sent from God. कि हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, But what do you witness? क्या हम गवाही देते हैं? We are not that light.
हम जो है हम वो ज्योति नहीं है, We are the witness of that light. हम जो है उस वो ज्योति की गवाही है, So, गवाह है why we should witness to others? कि हम दूसरों को गवाही क्यों दे, Why we should tell about Jesus Christ to others? हम जो है दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्यों बताएं That through us कि हमारे द्वारा they might believe. कि वो विश्वास पाए। If we don't speak, if we don't open our mouths, अगर हम बात नहीं करेंगे, If we हम don't- हमारे मुखों को नहीं if we खोलेंगे, don't tell Jesus Christ what did for us, हम नहीं बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए क्या किया, how will they receive? तो वो किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगे। So we can take this from this verse 6 and 7 तो हम इन 6 और 7 वचन से ये हम ले सकते हैं that God uses men. कि परमेश्वर मनुष्य का उपयोग करता है। If you are a born again Christian, अगर हम फिर नए सिरे से जन्मे मसीह है, God is trying to use you परमेश्वर प्रयास कर रहा है कि हमें वो हमारा उपयोग करे, to bear the witness of that light. कि हम उस ज्योति की गवाही दे। God used John the Baptist. और परमेश्वर ने जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का He उपयोग was the किया, last prophet, और वो जो है वो आखिरी भविष्यद्वक्ता था, right? No other came before him. और उसके बाद जो है वो कोई नहीं आया, He was great. और Bible says. वो जो है वो एक अपने इसमें महान था। Bible says he was a burning and a shining light. और वचन कहता है कि वो एक जलता हुआ और एक Shining light. और वो चमकता हुआ एक Light, प्रकाश था। tha. Right. So, in this church age, last, आज के जो आखिरी दिनों में we are the last. हम जो है हम आखिरी है। When we are gone, जब हम जाएंगे, the rapture comes. रैप्चर जब आएगा, There will no witnesses. उसके बाद जो है वो कोई भी गवाही नहीं So देगा। we are last in this day and age, the Laodicean church age. तो जो लेविटिकस चर्च एज है उसमें हम ये आखिरी तौर पर है। We are last to bear witness of it. हम जो है हम आखिरी है कि हम उसकी गवाही दे। So are you witnessing? क्या हम उसकी गवाही दे रहे हैं? Are you telling about Jesus Christ? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं? We'll move toward verse 8. हम वचन 8 की तरफ So the जाएंगे। first point, why to receive Jesus? प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करें? Because God sent a witness. क्योंकि परमेश्वर ने एक गवाह भेजा। Then we'll see why to receive Jesus. The reason, because Jesus is the true light. उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करना चाहिए, क्योंकि यीशु ही सच्चा प्रकाश है। See, verse 8 says, He was not that light, but was sent to bear witness of that light. वचन That- 8 में लिखा है, Verse 9, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. हाँ. वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। Put, no verse listening. Yes. So verse 8, he was not that light. वह जो है वह ज्योति नहीं था। John was not that light. वो यूहन्ना है, वो ज्योति नहीं था। And we as a Christians are not light. और हम जो मसीह लोग हैं, हम भी वो ज्योति नहीं है। Means we have the light in us. मीन्स उसका अर्थ ये है कि वो ज्योति हमारे अंदर है। Right? We have the Jesus Christ in us. हमारे अंदर जो है हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, And we are witnessing that light which is in us. और जो हमारे अंदर जो वो ज्योति है, हम उसकी गवाही दे रहे हैं। That light, verse 9 says, was the true light. और वो जो वचन 9 में जो लिखा है कि वो जो ज्योति है वो सच्ची ज्योति है। What that true light does, और वो सच्ची ज्योति क्या करती है? lighteth every man that cometh into the world. और जगत में आने वाले हर एक मनुष्य को वो प्रकाशित करती है। Right? There are many false light in this world. और ये जो हम संसार में जब रह रहे हैं तो संसार में कई झूठी ज्योतियां भी है, Right? Like all the worldly religions. जिस प्रकार से इस संसारिक में जो धर्म है In Christianity itself, और मसीहत में there are many cults, means false, means believers. We can किस प्रकार से इस मसीहत में मसीह लोगों में भी झूठे विश्वास करता है। Right? Means about they are teaching wrong doctrines from the Bible. वो जो है वो झूठी शिक्षाएं वचनों से सिखा रहे हैं, They are not rightly dividing the scriptures. और वो जो है वो सही प्रकार से वचनों का विभाजन नहीं कर रहे हैं So what is being produced? कि क्या क्या उत्पन्न किया जा If सकता you है। see about Mormons, अगर हम देखेंगे कि मोर्मन्स के विषय में, Jehovah Witness, यहोवा विटनेस के विषय में, right, and all the other religions, Buddhism. और बुद्धिज्म में, If you see the yoga and the meditation, और ये योगा और जो ध्यान और ध्यास है उसके विषय में, what are they? और वो क्या कर रहे हैं? They are all false light. वो जो है वो झूठी ज्योतियां है, They offer false hope. और वो जो है वो एक झूठी बातें वो सिखा रहे हैं। Right? They talk about the inner power. वो जो है वो एक अंदरूनी शक्ति के विषय में सिखाते Right? हैं। But Bible says you are dead in your sins and trespasses. परंतु वचन कहता है कि आप जो हो हमारे अपने पापों में मर चुके हो। Right?
there is nothing good inside you. कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, There is no inner power in you. कि हमारे अंदर जो है वो आत्मिक कोई भी शक्ति नहीं है। If you want that inner power, अगर हमें वो अंदरूनी शक्ति को पाना है you should receive Jesus. तो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार You करना should be चाहिए। born of God, हमें जो है परमेश्वर से फिर से जन्म लेना है। not of the your. If you have means we come from Adam, हम जो है वो हम आदम से आए हैं and we get a sinful nature in us. और हमें जो है हमारे पाप में वृत्ति हम में है। There is nothing good inside you हमारे अंदर अच्छा भला ऐसा कुछ भी नहीं है that will take you to heaven. कि वो जो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। So the true light, तो जो सच्ची ज्योति है, whenever you tell gospel to others, जब भी कभी हम सुसमाचार दूसरों को बताते हैं what happens? तो क्या होता है? You are bearing the witness of the true light. तो हम जो है उस सच्ची ज्योति की हम गवाही देते हैं The true light comes before them. और जो सच्ची ज्योति है वो उनके सामने आती है Means the gospel comes before them. और जब सुसमाचार उनके सामने आता है, Verse 9, what says? That light which lighteth every man that cometh into the world. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। The Bible says every man will receive that light. कि वचन कहता है कि जो हर एक प्रत्येक मनुष्य है वो उस सच्ची ज्योति को स्वीकार At the करेगा। end of the judgment, there will be no excuse that I have not heard the gospel. न्याय के दिन में जो है वो कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैंने सुसमाचार को नहीं The सुना। problem will only they face the why did they not receive Jesus? समस्या सिर्फ एक ही होगी कि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार क्यों नहीं किया। Why didn't they receive Jesus Christ? The life which He gives is eternal life. कि वो समस्या एक ही होगी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों नहीं किया। If you read ahead, you will see that men love darkness. जब हम आगे देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं तो मनुष्य जो है वो उस डार्कनेस को पसंद करता है। If you are in dark, अगर हम उस अंधियारे में हैं Jesus will lighten your darkness. तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने अंधियारे को जो है वो उजियाले से भर देगा। See, there is a connection हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक संबंध है between the word of God जो वचन के इसमें and the light. और उस ज्योति में। If you see Psalms 119, भजन संहिता उसका Psalm 119वां अध्याय 119 and verse 105. 119 and verse 105 I'll read. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. See, तेरा- thy word, what's तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। thy word, this word of God which we have in our hands, ये जो वचन है जो हमारे हाथों में है, the pure word of God, जो सच्चा जो वचन है which God has kept today in this age, the King James Bible, English language. जो किंग जेम्स बाइबल में जो परमेश्वर ने रखा है। The word is a lamp unto my feet. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है The same is the light unto my path. और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। If you see verse 130, the entrance of thy words giveth light. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है It giveth understanding unto the simple. और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। There is nothing hard in this Bible. और ऐसा कुछ भी कठिन इस वचन में नहीं है। If you don't receive it, अगर हम उसे ग्रहण नहीं करते then everything will be hard for you. तो सब कुछ जो है वो कठिन रहेगा। But if you receive परंतु जब हम उसे ग्रहण करते हैं what written in the scriptures, कि वचनों में क्या लिखा है, believing it without doubting, कि हम बिना संदेह के उसे विश्वास करते हैं, then God will produce an understanding unto you. तो परमेश्वर जो है वो हमारे इसमें समझ को हम प्राप्त करते हैं। Means the word of God will bring the light inside. तो जो वचन है वो हमारे अंदर उस प्रकाश को लाएगा। Right? If you see John chapter 8, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 43. John 8:43. Why? We'll read, why do ye not understand my speech, even because ye cannot hear my word? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। Why people don't understand God? पर लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं समझ, परमेश्वर को क्यों नहीं समझ पाते? Because they don't hear him. क्योंकि वो उसे सुनते नहीं है। If you don't hear the word of God, अगर हम वचनों को सुनेंगे नहीं there will be no entrance of words in you. तो वचनों का जो प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो पाएगा, You will have no light in you. कि हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं होगा, You will have no understanding in you. हमारे अंदर वो समझ नहीं होगी। So all you will have
तो जो कुछ भी हमारे पास होगा, you will have the false light from the world, तो हमारे पास होगा कि वो जो झूठा प्रकाश है इस संसार का वो होगा, which will offer a false hope. और वो जो है वो हमें एक झूठा स्कोप हमें दिखाएगा। But if you have the true light, Jesus, अगर हमारे पास वो सच्चा प्रकाश है, सच्ची ज्योति है जो प्रभु यीशु मसीह है, it will give you a true hope. तो वो हमें एक सच्ची आशा देगा, True hope that one day we are going to see Him. कि सच्ची आशा कि एक दिन हम उसे देखेंगे We are going to live with Him in eternity. और हम सर्वकालिक जीवन में उसके साथ रहेंगे। So if you are in darkness, अगर हम उस अंधियारे में हैं, Jesus will lighten your darkness. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने जो अंधियारे को उजाले में बदल So देगा। why to receive Jesus? कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करें? Because God sent a witness. क्योंकि उसने एक गवाह भेजा। Why to receive Jesus? कि यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करें? Because Jesus is the true light. क्योंकि यीशु ही सच्चा प्रकाश है। Then we'll move ahead. उसके बाद हम आगे देखेंगे Why to receive Jesus? यीशु मसीह का स्वीकार क्यों करें? Because the world rejected Him. क्योंकि संसार ने उसे स्वीकारा नहीं। Right? The world rejected Him. Verse 10. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। The world is opposite to God. और जो संसार है, ये जो जगत है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। If you love the world, अगर हम वचन से प्रेम रखते the हैं Bible says you are enemy with God. तो Enemy with God. with God, Shatru. तो हम परमेश्वर से शत्रु है। If you love the world. हाँ, Yes. Right? अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के शत्रु है। Right. If you see sun, अगर our हम sun, देखते हैं कि पुत्र नहीं, सूर्य, right? It's opposite to the earth. वो जो है वो पृथ्वी के विरुद्ध में होता है, Regarding the rotation and all. वो उसके ग्रहण के विषय में। So Jesus तो प्रभु यीशु is मसीह also called a sun. उसे भी जो है वो सन कहा गया है, Right? He is opposite to the world. और वो जो है इस संसार के जो है विरुद्ध में है। If we are walking with the world, अगर हम इस संसार के साथ चलते हैं Bible says we are enemy with God. तो वचन कहता है If you कि हम open परमेश्वर के James- विरुद्ध है। James 4:4. Book of James 4:4. Before First Peter. James 4:4. Ye adulterous and adulteress, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Right? What is the command? If you see 1 John 2:15. 1 John 2:15. There is a command given clearly, love not the world. यहाँ पर बताया गया है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। This is very powerful verse for a Christian. ये जो है ये एक सामर्थ्य वचन है मसीहियों के लिए। If you apply it, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं the world will never means drag you down. कि जो ये जो संसार है ये आपको कभी भी नीचे नहीं खींच If you पाएगा hold on to God. अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते If हैं। you hold on to the world, कि हम अगर संसार के साथ खड़े रहते हैं it will take you away from this book. तो वो संसार जो है वो हमें इस वचन से दूर लेकर जाएगा। Love not the world, कि संसार से प्रेम न रखो, not the things in the world. कि संसार के वस्तुओं से प्रेम न रखो। This world is cursed. ये जो संसार ये शाप से भरा है, People are in sin. वो लोग जो है वो पापों में पड़े हैं। If any man love the world, अगर कोई मनुष्य है जो संसार से प्रेम रखता है the love of the Father is not in him. तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। So clearly the Bible says, don't love the world. वचन सीधे तौर पर बताता है कि संसार से प्रेम न रखो। It doesn't mean that you should, whenever you see anyone, you should hate someone. इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को भी देखेंगे तो उसका हम तिरस्कार करें। You should understand the spiritual nature in which the world is going on. कि हम इस देखें कि जो आत्मिक रूप से जो जिस प्रकार से संसार चल रहा You should है have burden कि in your heart हमारे पास जो है वो बोझ होना चाहिए to win their souls. कि उनके आत्माओं को हम जीत पाए। But you know that their soul are going to hell. हमें ये पता है कि उनके जो जीव है, उनका जो प्राण है वो नरक में जाने वाला है।
You should have a burden and you should bear the witness of the light. हमारे हमारे पास जो है हम पर जो है वो बोझ है और हमने जो है उस ज्योति को उन्हें दिखाना है, So if you गवाही see देना है। Galatians 4, गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय Galatians chapter 4 and 16. वचन 16 Verse 16. 4:16. Galatians 4:16. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? तो क्या तुमसे सच बोलने का कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? If you tell the truth, अगर हम सत्य बताते हैं automatically we will become the enemy of the world. तो हम संसार के दुश्मन बन जाते हैं। But if you don't tell the truth to the world, अगर हम सच्ची बात को अगर संसार से नहीं कहते हैं you will become enemy with God. तो हम परमेश्वर से दुश्मन बन जाते हैं। Whose enemy do you want to become? तो किसके दुश्मन आप बनना चाहते हो? If you see how God deals with his enemy in the Old Testament, if you read about him, अगर हम पुराने नियम में अगर वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके दुश्मनों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करता Bible है, says also it's a terrible thing to fall into the hands of God. वो ये परमेश्वर के हाथ में पड़ना जो है वो कितनी अच्छी बात है, भयानक बात है। Yes, so a friendship with the world तो ये संसार से जो मित्रता है is enemy with God. तो वो परमेश्वर के साथ दुश्मनी है। So do you want to become enemy तो क्या हमें वो दुश्मन बनना चाहते हैं with God? परमेश्वर के साथ? If you don't want to become enemy, तो अगर हमें वो दुश्मन नहीं बनना है you should be friend with God. तो हमें उस परमेश्वर के साथ वो मित्रता You should पूर्वक रहना है। love God. तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। People say, I love Jesus. लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखता हूँ। They stand and sing the hymns. I love Jesus. They wave 1 hour, they sing. तो वो खड़े रहकर कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ। But the real test is, परंतु जो सच्ची जो टेस्ट है वो है if they don't read the word of God, कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, they don't love the God. वो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं, Jesus is the written word. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो लिखा हुआ वचन है। And if they don't read the Bible, their Bible, और अगर वो वचन को नहीं पढ़ते हैं it's shame they are calling themselves that they love God. तो उनके लिए ये एक शर्मनाक बात है कि वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। So reading the Bible will give you understanding. तो वचन को पढ़ने से जो है हम वो समझ को प्राप्त It करते will हैं। give you and light in you. तो वो जो है वो हमें वो प्रकाश को देता है। Right? So it will give you a true hope. वो जो है वो एक सच्ची आशा को हमें देता है। If you see verse 10. अगर हम वचन 10 में देखते हैं, He was in the world, वह जगत में था and the world was made by him. और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ God came down in flesh, और वो शारीरिक तौर पर नीचे आया, and the world knew him not. परंतु Means the world knew him not. हाँ, जगत जो है, संसार जो है वो उसे नहीं जानता था। The men are so blind जो मनुष्य जो है वो इतने अंधे हैं that they had to be told that there is light in front of them. कि उन्हें ये बताना मांगते हैं कि आपके सामने वो प्रकाश है। If you see John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Verse 20. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। Right? If he comes to the light, अगर हम प्रकाश के पास आते हैं, their words means the evil deeds will be exposed. जो हमारे जो बुरे काम है वो बाहर आते हैं। They want to keep them hidden. तो वो चाहते हैं कि हमारे जो बुरे काम है वो उसे छिपा कर रखे। But the Bible also offers that their sins will be washed away if they receive Jesus. परंतु वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके जो पाप है वो धो दिए जाएंगे। If we see verse 21, अगर but हम he that doeth truth cometh to the light, commit to the light, that his deeds may be made manifest, that they are brought in God. परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। If you receive Jesus, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, your sins will be washed away. आपके जो पाप है वो धो दिए जाएंगे। So
you should receive Jesus. तो हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना है। Why? क्यों? Because the world rejects him. क्योंकि संसार ने उसे स्वीकारा नहीं है, Because the world is against God. क्योंकि जो संसार है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। And you should choose to go with God. तो हमें ये चुनना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। If you see verse 11, अगर हम वचन 11 में देखते he हैं, came unto his own, वह and his own received him not. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Right? He came unto his own. वह अपने खुद के घर आया, नहीं, घर नहीं. He came unto his own, means his own people. कि वो अपने लोगों के पास आया। Who were they? वो कौन थे? Jews. जो Right? यहूद Jesus came to the lost sheep Israel. of house of Israel. वह प्रभु यीशु मसीह जो है वो इजरायलियों के लिए आया था, But Jews rejected him, परंतु इजरायलियों ने क्या किया? उसका विरोध किया, and the doors were open to the gospel, or to the Gentiles. और वो जो है वो गैर यहूदियों के लिए जो है वो दरवाजे ओपन खुले हो गए। Romans chapter 11, रोमियो उसका 11वां अध्याय verse 11. और 11वां वचन। I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto Gentiles, for to provoke them to jealousy. अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। Right? The rejection of Jews जो यह इजरायलियों का जो विरुद्ध है, means they rejected Jesus Christ. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार किया, They didn't recognize that he was the true light. और वो उन्होंने ये नहीं जाना कि वो एक सच्चा प्रकाश है। Didn't recognize that he was the light which came to take away all their sins. वो उन्होंने इसे नहीं पहचाना कि वो जो सच्चा प्रकाश है वो हमारे लिए आया कि हमारे पापों को वो दूर कर But सके। also the main thing, he came as a Messiah. और जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक मसीहा के रूप में आया। Entire Old Testament, they all were waiting for Messiah. वो जो पुराने नियम में, पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो मसीहा के लिए बाट जो रहे थे, If they were studying their scriptures, और वो जो है वो वचनों के द्वारा सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। if they had studied properly, अगर उन्होंने वो प्रॉपरली पढ़ा होता they would have received Jesus. तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया होता। Right? So, why to receive Jesus? कि तो क्यों प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना चाहिए? Because his own people rejected him. क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसका अस्वीकार किया। This tells you one truth. ये हमें एक सच्ची बात को बताता है। Whenever you tell gospel जब भी कभी हम सुसमाचार को बताते हैं to your own people, कि हम अपने लोगों को, sometimes they will reject. Many of times they will reject. तो बहुत से समय में वो जो है वो स्वीकार नहीं करते। They will tell you are mad. वो हमें कहते हैं कि आप मूर्ख हो। Right? You're gone mad. You're talking anything. वो कहते हैं कि आप मूर्ख हो और आप कुछ भी बात करते हो। Right? So first tell your gospel to your own. तो सबसे पहले जो है सुसमाचार अपने लोगों को बताना है। Right? To your own family members. तो अपने जो खुद के परिवार के लोग हैं उन्हें, Check in your family. कि हमारे परिवार में हमें चेक करना है, Ask them, कि उन्हें पूछना है when did you trust Jesus Christ as your personal savior? कि आपने प्रभु यीशु मसीह का अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में कब धारण किया? When was that day? वो दिन कब था? We will see ahead. We are not born a Christian. तो हम आगे देखते हैं कि हम जो है वो मसीह के जन्मे नहीं हैं, So his own people rejected him. कि उसके खुद के लोगों ने उसे अस्वीकार किया। That's why you should accept him. उसी कारण से जो है हमें उसे ग्रहण करना है। Because last we read, whenever you tell the truth, हमने देखा कि जब कभी भी हम सत्य को बताते हैं there will be rejection. तो वहां पर है विरोध को आता है, And the scriptures tell you the truth. और वचन जो है वो सत्य बात को हमें बताता है। To move toward the last fourth point. हम This was the fourth point because his own people rejected him. क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। And we have seen this. Okay. So the last point, why to receive Jesus? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार क्यों करना चाहिए? Because receiving him, you will get born of God. क्योंकि उसका स्वीकार करने से हम परमेश्वर से जन्म पाएंगे। If you read verse 12, but as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान
होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Right? But as many as received him, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया to them he gave power. उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Right? You will become a son of God. हम जो है परमेश्वर के संतान होंगे। All your sins will be washed away. आपके जो सब कुछ जो पाप है वो धो दिए You जाएंगे। will be standing before God right. तो हम जो है परमेश्वर के सामने एक सही जगह खड़े होंगे। Means you will have the righteousness, means holiness of God in you when you stand before God. परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर होगी जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। Yes. So as many as received him, जितनों ने उसे ग्रहण किया to them he gave power to become the sons of God. तो उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। If you want to be son of God, तो अगर हम परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं you want to be born of God. तो हमें परमेश्वर से जन्म लेना है। So how we will get born of God? तो हम परमेश्वर से जन्म कैसे पाएंगे? Verse 13 tells us, वचन 13 हमें बताता है, which were born not of blood. वे न तो लहू से, You are not born a Christian by your blood. हम जो है न तो Means by birth you are not a Christian. हाँ जो जन्म से जो है हम मसीह नहीं हैं। Yes. If you have a child, अगर हमें एक बच्चा है, you means the government under recognition or certificates you apply a Christian as a Christian to them. तो जो सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर हम उसे अप्लाई करते हैं Means the documentation. वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। But he is not born Christian. परंतु वो जो है वो जन्म से ही क्रिश्चियन मसीह नहीं है। He is born dead. The वो Bible says. वचन कहता है कि वो जो है वो मृत था जब Right? जन्मा। So you are born of God, not of blood. तो हम परमेश्वर से जन्म पाए हैं परंतु वो लहू के द्वारा नहीं, Again the verse says, not of the will of the flesh. परंतु शरीर की इच्छा से नहीं। You don't become Christian by your good works. हम जो है हमारे भले कामों के द्वारा हम वो मसीह नहीं बनते हैं। No one is made Christian by their works. हम कोई भी जो ऐसा नहीं है जो उनके भले कामों के द्वारा वो मसीह बना है। So he is the person becomes Christian the moment he receives Jesus Christ. जब कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करता है उसी समय में वो मसीह बन जाता है। And the next thing, nor of the will of man. और उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं। No one can force you to become Christian. कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप मसीह बनने के लिए। So they claim that today the Christian force people. तो वो ऐसा बताते हैं कि आज के तौर पे जो मसीह लोग हैं वो फोर्स करते हैं लोगों को मसीहत The में। Bible says the will of man, you cannot be born of God by the will of man. परंतु वचन कहता है कि आप परमेश्वर से जन्म नहीं पाएंगे मनुष्य की इच्छा से। Right? हम No नहीं matter पा how सकते। much they will force you, you cannot be born of God. You have to freely receive Him. लोग कितना भी आपको फोर्स क्यों ना करे परंतु हमारा ये खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से नया जन्म पाए। Right? If you see verse 9, अगर हम वचन 9 में देखते हैं, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. जो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली। God offers this salvation to everyone. परमेश्वर ने जो है वो उद्धार को हर एक को निमंत्रित किया है। Right? The only thing is they have to receive Him. परंतु सिर्फ एक ही बात है कि लोगों ने उसे ग्रहण करना चाहिए। He was 11. He came unto his own, but his own received him not. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं Many किया। people just believe, just hear, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं और but they don't receive Him. परंतु वो उसे स्वीकार नहीं करते। So if you want to get born of God, तो अगर हम परमेश्वर से जन्म पाना चाहते हैं you have to receive Him. तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। If you move ahead with this entire gospel as we are studying, अगर ये सुसमाचार में हम आगे देखते हैं this book will offer you salvation on every page. तो ये जो यूहन्ना की जो पुस्तक है यूहन्ना का सुसमाचार है वो हमें हर एक पेज पर हमें उद्धार को देता है। If you are a new born again believer, अगर हम नए सिरे से जन्मे मसीह है start with the book of John. तो हमें यूहन्ना की पुस्तक से शुरुआत करनी Study है First Thessalonians, कि फर्स्ट थेसलोनियों को पढ़ना First है। and Second Thessalonians. पहला और दूसरा थेसलोनियों को। It will ground your faith. वो जो है वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। Everything for a new born again believer which he needs to know, you will get from these books. जो नए सिरे से जन्मे लोग हैं वो बहुत सी बातें इस पुस्तक से वो सीखेंगे। That's why we are going slowly with this book.
इसीलिए हम जो है वो धीरे से इस पुस्तक में से जा रहे हैं that you may know how the words, every word is very much, can speak much things. कि ये जो वचन है इसमें का जो हर एक शब्द है वो बहुत सी बातों को बताता If है। you see verse 1 to 5, अगर हम वचन 1 से 5 में अगर देखते हैं, in just 5 verses, ये सिर्फ 5 वचनों में John has told that Jesus is greater than man. कि यूहन्ना ने यहाँ पर बताया कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य से कहीं बढ़कर है। No man can write like this. कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस प्रकार से लिख सकता है। If you sit today, I told you that just write 5 lines and make Jesus Christ greater than man. अगर हम कहते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठेंगे और हम सिर्फ 5 लाइनों को लिखेंगे और प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य से कहीं बढ़कर You दिखा are not able to write. तो हम वो नहीं कर पाएंगे। This tells us this book is divine, तो ये इस बात को हमें दिखाता है कि ये जो वचन है ये दैविक है। right? It is the word of God which will are quick and powerful. ये जो है परमेश्वर का वचन है और ये सर्व सामर्थ्य है। So as we move ahead with this book, जब हम इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं that you pray कि आप प्रार्थना करें that through these simple topics, कि ये सीधे साधे विषयों से, they are not deep. ये जो है ये बहुत डीप नहीं The है। Bible says the salvation is simple. वचन कहता है कि जो उद्धार है वो सीधा है। Why we have started this? कि हमने ये इसकी शुरुआत क्यों की? Because in this last day and age in which we live, कि इन आखिरी दिनों में जब हम जी रहे हैं, we are to call to bear the light, हमें जो है witness of that light. उस ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाया है। If you don't witness, अगर हम वो गवाही को नहीं देते हैं, the Bible says you will lose your rewards, तो हम वचन कहता है कि हम जो हमारे रिवॉर्ड्स है उसको हम खो which देंगे, you have earned. जो हम पाते हैं। So, with this we'll stop, and what we have seen, we'll just revise. God sent a man. कि परमेश्वर ने एक गवाह भेजा, God has sent you. परमेश्वर ने आपको भेजा। Then we see that Jesus is the true light. अब उसके बाद हमने देखा कि यीशु ही सच्चा प्रकाश है। You are not the true light. हम जो है हम वो प्रकाश नहीं है। Jesus is the true light. You are just to bear the witness of the true light. प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चा प्रकाश है और हमें वो प्रकाश का वो ज्योति का गवाही देना है। Why to receive him? कि उसको स्वीकार क्यों करना Because है? the world rejected him. क्योंकि संसार ने उसे स्वीकारा नहीं। Because the world is opposite to God. क्योंकि जो संसार है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। And if you love the world, अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं you don't love God. तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। So why you should receive Jesus? तो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार क्यों करना चाहिए? Because the world doesn't love God. क्योंकि जो संसार है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, Enmity with God, enemy of God. वो परमेश्वर के पर बैरी है। So why to receive Jesus? Because his own people rejected him. यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। This tells you a truth. वो हमें एक सच्चाई को बताता Whenever है। you tell your truth someone, जब कभी भी हम किसी को सच्ची बात को बताते हैं they always reject. तो वो अस्वीकार करते हैं। That's why you should accept the truth. कि उसके लिए जो है हम वो सत्य को हमें जानना चाहिए। Jesus said, I am the way, the truth. No one cometh unto the Father but by me. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ और मेरे द्वारा ही मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा And सकता। last thing we see, receiving him, you will get born of God. यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि उसका स्वीकार करने से हम परमेश्वर से जन्म पाएंगे। So next onwards we'll move ahead.